So, hi everyone, myself Vaibhav Rai, and I have scored 676 number in NEET 2024. So, in this video, I'll be telling you how to score 650 plus numbers in NEET exam. So, first of all, let's start with my educational career so that you can know that I'm quite eligible to tell you how to study for this particular exam. So, in class 10th CBSE boards, I have got 96.6%, in which in science I have got 99 out of 100, in maths I have got 96 out of 100, and in science I was my school topper. Now, in class 12 CBSE boards, I have got 90%, and I was also the bronze and gold medalist in Unified English Olympiad. Now, coming to the nearest one, the JEE Main 2024, I have got 98 percentile overall, and I have left maths in class 10th CBSE board. So I have not attempted a single question in maths. Still, I have managed to get 98 percentile in JEE Mains 2024, in which in physics I have got 99.497 percentile, and in chemistry I have got 99.632 percentile. Now, coming to the nearest one, the NEET UG 2024, in which I have got 676 out of 720. Now, in physics, I have got 166 out of 180. In chemistry, I have got 170 out of 180. And in botany, I have got 160 out of 180, in which I did some silly mistakes, like there were two diagram questions that I misunderstood, and that took my number, and there was a silly mistake in one more question. We will talk about that later. Now, in zoology I have got 180 out of 180, the perfect score. Now, this was all about my educational means my educational background, that what I have done in my life till now. Now I'll be telling you about how to score 650 plus. How to score 650 plus in 650 plus in NEET. Now, so first of all, let's start with bio. So bio is a basic subject in which the amount of time that you will give to this particular subject, the more amount of number or the more number you will get in this subject. Now, the only and only book that you have to read in bio is just and just NCERT of both class 11th and class 12th. Means this is the only and only book from which questions will come in this exam, and I can assure you that you can get 360 out of 360 very easily in this exam. Now, only out of NCERT. Now, what you have to read in this? You have to do all the diagrams thoroughly. You have to do all the in-text questions. You get to know the in-text questions that are given in that. Now, there is a summary that is given at the end of the chapter. You have to read it thoroughly, because there are about 2 to 3 points that are not given in the whole chapter, but it is given in this chapter, like the duration of conception in reproductive health chapter, the duration of conception till how many years if a person does not gives child to a birth even after continuous coitus, then that amount 2 year is given in the summary section. Now, this is enough, means this is more than enough for bio purpose. Now, coming to the physics one. No, physics. So physics isn't quite interesting if you take the purpose of concept, but if you are only for the purpose like यार मेरे को एक बार निकल जाए मेरी नीट, उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है फिज़िक्स से, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, आप इसमें 150 प्लस अगर फिज़िक्स में आप स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे. तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ये आपको जहाँ पे भी आप जा रहे हैं ना, कोचिंग कर रहे होंगे या फिर स्कूल में जा रहे होंगे, तो जो सर लोग लेक्चर्स पढ़ाएं
वो आराम से कर लो, एकदम उनके अच्छे से पूरी चीज़ें समझ लो। घर पे आओ तो ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो यार। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देखता था, बट मैं एनवी सर के देख लिया करता था, या तो जो अलग सर हैं इनके मैंने वीडियोस देख रखे हैं। जैसे कि मतलब एक है ना रिवर बोट प्रॉब्लम, इन सब के मैंने अलग सर के वीडियोस देख रखे हैं। ठीक है नाउ, अब इसमें लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, लिटरली कुछ भी नहीं होगा तुम्हें मेन क्या है इसमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारा दिमाग उतना ज़्यादा खुल जाएगा एट द एंड। मतलब पेपर में क्या होता है ना यार, तुम्हें कितने क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मिनट। OMR भर रही नहीं है तुम्हें, 10 मिनट इसमें चले जाएंगे, 10 मिनट तुम्हारा इन्विजिलेटर खा जाएगा। समझ रहे हो ना? कुल मिला के तुम्हें कितना बच रहा है, 180 मिनट में तुम्हें, ऑफ कोर्स करने तो 180 क्वेश्चन ही हैं, बट 200 क्वेश्चन क्योंकि तुम्हें पढ़ने हैं, उन्हें फिर तुम चूज़ करोगे ना कि कौन से करना है सेक्शन बी में। तो तुम्हें इसमें तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए ना तो 55 सेकंड आ रहे हैं तुम्हारे पास अभी भी, 55 सेकंड के आसपास आते हैं तुम्हारे लिए एक सवाल करने में। उसमें क्या तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ के सॉल्व करके टिक लगा के आगे भी बढ़ना है भाई। समझ रहे हो? तो तुम्हें उसमें क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए कि तुम जब पढ़ो उस टाइम तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें बनती जाएँ, सारा विजुअलाइजेशन होता जाए कि यार ये क्वेश्चन जो है ये मुझे ऐसे करना है। और वो कब होगा, जब तुम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जब तुम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना यार, तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, तुम्हें उस सॉल्यूशन में वैल्यूज़ फिट करनी है, यू विल ईजिली गेट योर आंसर। ठीक है। एंड अब जैसे ना इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार कि भैया मेरे समझ ही नहीं आती है, मैं क्वेश्चंस करूं क्या, मुझे बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसके लिए देखो, मतलब मेरे जो सर थे वो मेरी क्लास में सबको बोला करते थे कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए तो जो सर लोग नोट्स लिखवाते हैं ना, जो भी आज तुम कोचिंग स्कूल कहीं पे भी नोट्स लिखे हो, वो घर जाओ उन नोट्स को उतारो, बार बार उतारो, 4 बार उतारो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, मतलब लिटरली तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे चैप्टर जो हैं ये भी अटक रहे हैं तुम्हारे, तो 4 बार जो नोट्स है ना उसी को लिखो रफ पे बार बार लिखो। वही जितनी चीज़ें सर ने लिखवाई हैं फॉर्मूला लिखो, बार बार लिखते जाओ। जो सर क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें बार बार करते जाओ। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें धीमे धीमे एक ही चीज़ बार बार देख के तुम्हें समझ आने लगेगा कि हाँ यार ये जो चीज़ है ना ये मुझे ऐसे ही करनी है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका यही टाइप है। तो तुम जब क्वेश्चंस उस नोट्स को बार बार करते जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में जो थिंकिंग एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इफ़ सपोज़ कर लो, ये तो एक उन बच्चों की बात होगी जो मतलब एकदम ही जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बट इफ़ तुम एक मॉडरेट स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, तुम मेहनत करते हो, तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा एट द एंड जाके। तो मैं जो यार क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, तो यार मेरे एक ना DC पांडे थी मेरे पास, मैं ये पढ़ता था, DC पांडे नीट वाली थी, ये पढ़ता था। और मेरे कोचिंग की मॉड्यूल थी, इसमें क्वेश्चंस हुआ करते थे। मैंने आकाश से कोचिंग की है तो उसमें क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो वो मैं सॉल्व कर लिया करता था। और उसमें भी यार सेक्शन A सेक्शन B करता था। मतलब उस आगे जाओगे ना उसमें लेवल 2 होता है एक, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, उन्हें करने का कोई मतलब नहीं होता है सच, तो मैं उन्हें छोड़ दिया करता था। उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहते थे वो मेरे सर लोग नोट्स पे लिखवा दिया करते थे, उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। तो DC पांडे और मॉड्यूल ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें DC पांडे करनी ही करनी है, तुम नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, तुम नॉर्मल कोई भी एक बेसिक सी बुक उठा लो अमेज़ॉन से, कोई भी एररलेस, बहुत सी हैं यार, मैं नाम नहीं जानता इतना, उठा के लगा लो, नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हें ऐसा भी कुछ नहीं है कि अब तो पेपर्स ऐसे आने लगे हैं कि यार तुम बिना कोचिंग के भी नीट निकाल लोगे आराम से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोचिंग के लिए भी ऐसा कोई नहीं है कंपलसरी कि तुम्हें कोचिंग जाना ही पड़ेगा, नहीं, कोचिंग बिना जाए भी आराम से नीट निकाला जा सकता है। नाउ तुमने ये दोनों चीज़ें कर ली,
रेगुलर टेस्ट तुम्हें फिज़िक्स में मेनली क्या है ना, तुम्हें एक चैप्टर करने के बाद उस चैप्टर का तुरंत पेपर दे देना चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यार पर्टिकुलरली ना ये चैप्टर मेरा कन्फर्म है कि नहीं, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और जब तुम्हें टेस्ट में एक अच्छे नंबर आएंगे ना, तुम नेक्स्ट चैप्टर पर जब जा रहे होगे तो तुम्हें खुद अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार लास्ट वाला चैप्टर तो ख़त्म करके आया हूँ, ये वाला भी अच्छे से पढ़ लूँगा। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो वो तुम्हारे खुद ब खुद क्वेश्चंस निकाल देता है यार। ऐसी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये, आराम से तुम लोग क्वेश्चंस लगाओ। और एनसीईआरटी जो है ना यार, मेन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है इसमें कि यार फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं। फिज़िक्स में आई डोंट थिंक एनसीईआरटी पढ़नी है। अब जैसे मेरे ही साल एक क्वेश्चन आया था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व हुआ, बेसिक क्वेश्चन था यार, नॉर्मल सा कि सारे एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं। बट ठीक है यार, कुछ लोगों को था कि नहीं सब एग्ज़ाम सब होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है ये वो, छोड़ो वो सब। एनसीईआरटी यार तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। एनसीईआरटी बहुत है कि कई जगहों पे ना यार तुम देखोगे नई एडिशन में भी पुरानी ही चीज़ें लिख रखी हैं इन लोगों ने। तो एनसीईआरटी पे उतना रिलाई मत करो, जो तुम्हारे सर लोग पढ़ा रहे हैं उस पर रिलाई करो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे ना, तो एनसीईआरटी की फ़िज़िक्स में कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस भी जो होते हैं फालतू होते हैं यार। मैथ के क्वेश्चंस तुमसे फिज़िक्स में करा रहा है यार, मतलब इससे अजीब क्या चीज़ होती है, तुमको कैलकुलेशन करा रहा है। इतनी अजीब अजीब कैलकुलेशन है फ़िज़िक्स में मेरे हिसाब से कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम एनसीईआरटी को कर रहे हो, मतलब एनसीईआरटी करने की फ़िज़िक्स में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। एंड जो जिन बच्चों के बारे में बता रहा था कि नोट्स 4-4 बार लिखो, ये सब करो, उनके लिए एक और चीज़ है कि यार वो कोई बेसिक्स ही ना बुक उठा लो जिसमें बेसिक सवाल हो, वो नेट पे सर्च कर लो, मिल जाएगी एकदम बेसिक। स्टार्टिंग देखो, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। मैंने खुद से देखा है कि जो बच्चे काफ़ी कम कर रहे थे स्कोर, वो एंड में जाके अच्छा करने लगे थे। ठीक है, तो तुम जब नोट्स एक बार तुम्हें दिमाग में आ जाएगा ना, तुम्हें बैठने की आदत पड़ जाएगी कि मैं इतने देर बैठ के पढ़ सकता हूँ, तो तुम आराम से निकाल ले जाओगे। तुम मेरी बात पे विश्वास रखो, आराम से तुम एट द एंड क्वेश्चंस कर लोगे एंड यू विल स्कोर वेरी गुड नंबर्स इन नीट एग्ज़ाम। नाउ कमिंग टू दी केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री हमें कैसे करना है यार। केमिस्ट्री एक ऐसा है ना जो कि थोड़ा मोड़ा सबको दिक्कत कर देता है, जिनकी भी जैसे जिनकी फिज़िक्स तक सही है उनको भी केमिस्ट्री थोड़ा सा रुला देता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिक 3 है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिज़िकल के लिए तो नॉर्मल है यार, कोई एक बुक ले लो, जैसे मैंने वो की थी, क्या नाम है इनका, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, ठीक है ना, मैंने ये फिज़िकल के लिए लगाई थी। इनऑर्गेनिक यार अब तो पी ब्लॉक भी हट गया है, एस ब्लॉक भी हट गया है, दोनों से ऐसे चाह नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक का पार्ट जो है वो लमसम अब ख़त्म हो चुका है हमारे सिलेबस से। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक ये दो ऐसी चीज़ थी जिससे पूरे भाई सब कोई डरता था, एंड ये दो, एस ब्लॉक से कौन ही डरता था, पी ब्लॉक से डरता था, तो वो हट गया है। एंड डी एंड एफ बचा है, डी एंड एफ में भी तुम ध्यान से अगर पढ़ोगे ना सिलेबस, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें हट चुकी हैं। तो इनऑर्गेनिक पे आई डोंट थिंक कि तुम्हें सर के जो नोट्स हैं उनसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत है, नहीं, सर के नोट से बिल्कुल भी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तुम कर लेना एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, ठीक है ना, एंड इसमें सर के जो नोट्स होंगे तुम्हारे वो कर लेना। सॉरी। एंड ऑर्गेनिक में यार, हाँ, ऑर्गेनिक थोड़ी सी दिक्कत करेगी, तो इसमें तुम्हें तीनों करना होगा। इसमें एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, सर के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं ही समझ में आएंगी एट दी एंड, तुम्हें यूट्यूब की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें यूट्यूब ने तो भाई लिटरली ऑर्गेनिक से करने में यूट्यूब का बहुत हेल्प था। बहुत लोगों से मैं पढ़ा करता था, जैसे ना एक ये सर हैं, क्या नाम है, प्रिंस सर करके हैं, PS सर, प्रिंस सर, इनसे मैं पढ़ा करता था। और एक और सर हैं वो जो मतलब वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं ना, वो, उनसे पढ़ा करता था मैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में लिख दूंगा। उनसे मैं पढ़ा करता था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब 1-2 वीडियो मैंने दोनों लोगों की देखी है, अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग काफ़ी। नाउ एक और चीज़ जो मैं केमिस्ट्री में किया करता था वो था कि एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको एक कॉपी में लिख लिया करता था। उससे क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन जब बनेंगे ना, क्वेश्चन क्या बनेंगे केमिस्ट्री में,
डायरेक्ट तुमको लाइन उठा के दे देगा, 4 लाइन दे देगा एनसीईआरटी का, और 1-2 वर्ड इधर उधर करके पूछ देगा बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंपली यही करेगा, इसके अलावा कुछ करेगा ही नहीं वो तुम्हारे साथ। तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन्स इसमें रटी होनी चाहिए। एंड उसके लिए मैं वही करता था, इंपॉर्टेंट जो लाइन मुझे उस टाइम पर्टिकुलरली याद नहीं हो पाती थी, उसे एक कॉपी में लिख लिया करता था, बार बार देखा करता था, तो अच्छे से याद हो जाती थी। ठीक है ना। अब तुमने अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ यार कि यू वुड बी स्कोरिंग अराउंड 165 प्लस इन केमिस्ट्री, 165 प्लस इन केमिस्ट्री, जो कि तुम बेयर मिनिमम है कि यार तुम अगर इतना कर रहे हो ना तो 165 तो तुम आराम से स्कोर कर ले जाओगे केमिस्ट्री में। एंड एक और डिस्क्लेमर दे दूं यार कि ऐसा नहीं है कि तुमने आज चालू किया तो 2-3 दिन में तुम्हारा पेपर है, सटाक से तुम्हारे 700 नंबर आ जाएंगे, 670-75 ऐसे ऐसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मिनिमम 1 से 1.5 महीने तो तुम्हें कंटिन्यू में ये सब रखना पड़ेगा, तो तुम आराम से करते ले जाओगे। एंड आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखें। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं निकालूँगा इफ़ सही रिस्पॉन्स आएगा तो। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा सबके यार अच्छे से रिप्लाई दूँ, सबको जो भी इनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।